Okay, good afternoon, everyone. Welcome to another session of Decode the Market with the Expert. I'm Neeraj Gugoi, your host. And today the guest is Mr. Pradyut Patnaik. Mr. Pradyut Patnaik is a expert. He's a SEBI registered research analyst with more than 30 years of experience in the stock market as a trader, as a research analyst. So he's going to help us understand to uh, to understand how the market look like and the sectors and the stocks that you can look for which are poised technically. So before I start, I would like to read the disclaimer for this event. Investment in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Representations are not indicative of future results. All discussions are purely educational in nature and no way an recommendation or an advice. So please take advice from your investment advisor. And here, the stocks that we are going to discuss are purely for educational purpose, right? So with that, let me invite the guest for today, Pradyutji. Welcome to the show. If you can open the camera. Great. Thank you so much, Pradyutji. Nice to see you. Yeah, it's same here, sir. Pleasure is all mine. Great. Yeah. First of all, last week that in the same session you have predicted that the market is poised for a good move upside, and we have seen this week from Monday onwards. Today is the fourth day. The market is on the positive side, right? There are so many things are happening. So yes, let us discuss one by one. Sure. So first, to start the discussion, my question to you is how the market look like? Is this that is it the beginning of a rally or is the bullishness going to continue? How do you look like the market at this point of time, Pradyutji? Okay. As we start, sir, today is the sixth day of gain. The market Yeah. Nifty is ringing its sixth day of gain, Bank Nifty as well. And last week when we spoke, the markets were the technical setup was something which was looking like a screaming buy. Okay. Hmm. And markets eventually moved up. And thanks to 15th August, PM Narendra Modi ji's the announcement, Correct. next generation reforms on GST basically. Hmm. But now going forward, there are many catalysts which we need to look at. I will I will just discuss those things one by one. To start with, we will start with global stock markets, basically how Wall Street is shaped up for the next for tomorrow's session as well as for the next week. So probably Sure. little bit clear more. Okay, we'll start up with global stock markets and then we'll take up the Indian markets. Correct. US markets are facing some headwinds at this point of time. Peak, the Nasdaq is down around 1.5%. I'm sorry, 2.5%. Dow is down 1% this week, and this is on backdrop of sticky inflation which had come on 15th August Friday. In the US market, the PPI inflation had spiked up to 3%, which is Okay. above the Fed's inflation targets of 2%. So what's happening is, what we are seeing is somewhere कहीं ना कहीं यूएस जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ को लेकर थोड़ा सा स्टिकीनेस इन्फ्लेशन में दिख रहा है. Correct. करेक्ट. एंड उसके कारण हो सकता है कि ग्रोथ विल बी अफेक्टेड. यूएस में जो ग्रोथ है फ्यूचर में इट मे बी अफेक्टेड. दैट्स व्हाट मेजर एनालिस्ट्स आर forecasting this. The street is anticipating this. If you see yesterday's FOMC मीटिंग का मिनट्स, जो जुलाई का FOMC मीटिंग के मिनट्स जो रिलीज हुए थे कल रात को 12:30 AM को, आज सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, तो वहां पे पीपल मींस मोस्ट ऑफ द फेड मेंबर्स वेर लिटिल बिट हॉकिश. ठीक है. तो उससे चलते हुए समवेयर एक एप्रीहेंशन है कि यूएस मार्केट से संकेत लिटिल बिट something it's a little bit dicey from the US markets. Okay. Okay. But having said that, यूएस मार्केट्स में सितंबर में फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट रेट्स कट का एक्सपेक्टेड है फेडरल रिजर्व का,
सितंबर में एक डन डील है कि ना एक 25 बेसिस में रेट कट्स probably will be, you can say, because of pressure or the data point, the CPI डेटा थोड़ा सा अच्छा आया था, तो उसके चलते हुए हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट से 25 बेसिस पॉइंट कम होना चाहिए यूएस में। ठीक है। पॉजिटिव ट्रिगर फॉर द यूएस मार्केट्स। यूएस मार्केट्स अगर मूव हो तो ये दे विल मूव अप ओनली ऑन बैकड्रॉप ऑफ ए सितंबर रेट कट एंड मोमेंटम है बेसिकली ऑन द बाय साइड, only because of two reasons. तो यूएस मार्केट थोड़ा सा शेकी ग्राउंड में, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। नाउ कमिंग टू इंडियन स्टॉक मार्केट्स। इंडियन स्टॉक मार्केट में धमाका हुआ है अगस्त 15 के बाद, जो फ्राइडे को अपना मार्केट्स बंद था। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी रिडक्शन किया, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का इंट्रोड्यूस किया है, तो एक डेफिनेटली ये धमाका तो है। और इसके चलते हुए इसके चलते हुए बाजार ने आई थिंक लास्ट जब से हुआ है तो 2% का बढ़त हासिल की है। वी वर एट अराउंड 24,600 on August 14 and we are today at 25,100 somewhere, around 500 पॉइंट्स का अच्छा मूव आया है मार्केट्स में। ओके। है मींस दिस जीएसटी ट्रिगर जो है इट इज क्वाइट पॉजिटिव एंड इससे मेरे को जो लगता है कि मार्केट में एक मोमेंटम, डिफेंसिव स्टॉक्स के लिए तो मोमेंटम होना चाहिए, एक स्टेबिलिटी आ गया है, जो स्टेबिलिटी पिछले हफ्ते नहीं था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। Okay. So, Pradyut ji, if you can share your screen and explain it with the chart, what is the support, what is the resistance, where the target looks like, if you can explain our viewers with a proper, technical setup, it could be, it would be very nice. Yeah, 1 minute, sir. I have shared my screen, sir. Yes, I can see it. Yes, fantastic. Now, as I was saying, sir, just उसमें if we are digging deeper there, then GST rates reforms तो हुए। अभी जो मेजर जो थ्रेट है अपने मार्केट्स को वो है अगस्त 27 को जो टैरिफ हाइक है which is at 50%, which is still placed at 50%. That's the major negative catalyst for our markets. Correct. इसमें बुल के सिनेरियो ये होता है कि 25% टैरिफ में अगर सेटल होता है तो दैट विल बी ट्रिगर्ड एज पॉजिटिव। 50% से अगर 25% होता है तो और अगर ये अगर 50% पे रहता है तो दैट विल बी परसीव्ड एज नेगेटिव फॉर द मार्केट्स। 50% में अगर सेटल होता है एंड अगर कहीं ना कहीं अगर ये सेटलमेंट होता है और यूएस डेलीगेशंस आर कमिंग ऑन अगस्त 25, स्टिल देयर इज टॉक्स, अगर टॉक्स के थ्रू मीडिएशन के थ्रू अगर सपोज द रेट्स आर कमिंग डाउन टू 18%, 15% के आसपास, 15 to 18 या 19% के आसपास आता है तो दैट विल बी सीन एज ए सुपर बुलिश थीम फॉर द मार्केट्स। तो दो तीन सिनेरियो है एट द मोमेंट। तो तीन सिनेरियो है। तीन सिनेरियो, एक बुलिश है, एक बेरिश है, न्यूट्रल है। हाँ, एक बेरिश है एंड एक थर्ड है सुपर बुलिश। ओके, ग्रेट। तो ये चीज को अपने को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि यूएस का ट्रम्प टैरिफ is going to get into effect on August 27. Sure. तो उससे पहले अपना पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली लोगों को बैलेंस, इन्वेस्टर्स को बैलेंस करना चाहिए। That's what my suggestion is. Cool. Got it. हाँ, अभी अगर दूसरे डेटा पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो इंडिया VIX है 11.8 के आसपास, इट्स वेरी नाइसली प्लेस्ड। क्रूड ऑयल इज एट 2 months लो, $62 से बैरल पे है। देन जो अभी म्यूचुअल फंड का जो डेटा आया था, जो लास्ट टाइम भी हम लोग ने बात किया था, 42,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड से रूट से पंप इन हुआ था और एसआईपी रूट से अराउंड 28,000 करोड़ का एक लास्ट मंथ में आया था एसआईपी फिगर। दोस आर पॉजिटिव। लास्ट ये अगर ये फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो इंडियन एसआईपी मींस डीआईएस के थ्रू अराउंड 2,50,000 करोड़ का बाइंग हुआ है। While this financial year FIs के थ्रू में सेलिंग जो हुआ है अराउंड 50,000 करोड़ का हुआ है। तो दैट्स एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर डीआईएस के तरफ से है। करेक्ट सर?
All the data points are suggesting that we will be neutral to bullish. But having said that, technically, we will take the technical charts of Nifty and Bank Nifty and then analyze. Data point में अगर किसी को अगर कुछ पूछना है तो we can discuss on that and then take it forward. श्योर एंड अगेन मैं जितने भी व्यूअर्स हैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी आपको स्टॉक्स का ऊपर व्यू चाहिए, टेक्निकल व्यू चाहिए, प्लीज फील फ्री, गो अहेड, टाइप योर स्टॉक नेम और टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स एंड me I am going to raise it to Predu ji. Predu ji, over to you. तो now having said that, all the data points are positive. अभी एक जो और एक पॉजिटिव ट्रिगर है जो बाजार के लिए है कि जो जीएसटी रेट्स कट होने का है, आई थिंक प्रॉब्ली सितंबर में होना चाहिए, दैट्स व्हाट माय सेंस इज. अभी फेस्टिव सीजंस आर अपॉन अस, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 27. और अगर कहीं पे अगर टैरिफ अगर कम होता है तो probably we may look for a 25 basis rate reduction from the RBI as well. That would be again giving boost to the basically growth. ये जो इंडिया का GDP growth जो 6.5% में है, उस that will get a good, definitely double boost आएगा सर. तो I think more or less we should be neutral to positive. I'm saying I'm using the word neutral to positive because I have little bit moved up. So we have little bit catched up with the global markets and probably the upside में जो resistance आ रहे हैं Nifty में. I will open the charts of Nifty and then show it across to you, sir. Sure. Able to see my charts? Yeah, can see it. Correct? Yeah. This is the daily chart of Nifty. Previous week we were around, we have nicely bounced up from these levels. अगर आप देखोगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, उसको निफ्टी में इजीली it has broken these levels. Correct? And it is trying to move up. The biggest positive landscape for Nifty is that it is moving above all the moving averages. Be it 21-day moving average, 50-day moving average, 100-day moving average and 200-day moving average के ऊपर ट्रेड हो रहा है निफ्टी. And it is aiming to move towards this high, which is 30th जून का जो हाई है 24,670. 25,670. So I'm so sorry. 25,670. So Nifty mostly जो मेरा सेंस है 25,300 और 25,670 एक बुलिश सिनेरियो में वहां तक जा सकता है. और अगर कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट आता है बिकॉज ऑफ अभी कल जेरोम पावेल का आई थिंक फ्राइडे को एक स्टेटमेंट भी आने वाला है, तो अगर उसके कारण अगर कुछ होता है तो प्रॉब्ली we may retrace down to our 100-day moving average on Nifty, which is around 24,610 levels. उधर तक जा सकते हैं. First would be around 21-day moving average, which comes at 24,800 के आसपास. तो on the very short term 24,800 जो upward sloping downward sloping trend line था, उसके account we will come down and take support. That's what my sense is. Perfect. Okay, so on the short term, technically the Nifty's support would be at 24,800 and the upside would be at 25,300, and if something aggressive, something bullish things comes up, then 25,600. Buy and dip should be the preferred strategies for Nifty. Cool. Yeah. How about Bank Nifty? Yeah. Now I'm pulling the charts of Bank Nifty. Bank Nifty देखो अभी भी still it is hovering at lower levels, means it's not catching up with the Nifty. Nifty ने it has moved up above all its moving averages, but Bank Nifty is still with 21 DMA or 50 DMA के नीचे ही ये अभी व्यापार कर रहा है. It's trading below those levels. तो little bit of relatively weak. हाँ, this is charts of Bank Nifty. Correct. So Bank Nifty little bit is it's underperforming. But the good thing is that it's holding on to the supports level. And probably अगर एक positive trigger आता है तो my sense is that we can move towards 56,500 these levels, sir. Around these levels we can easily move. So bias on Bank Nifty would be also positive. But having said that, Nifty should be this is the range for the Bank Nifty which I'm expecting. ओके प्रद्युत जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए हैं. आपने जीएसटी के ऊपर बात कहे थे कि
there's a discussion going on that जो हम लोग के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का ऊपर है वहां पे जीएसटी may be removed. Okay. So when you talk about insurance companies, general insurance or life insurance companies, so ये fin nifty में आते हैं, financial service, nifty. So how does it look like? And So very bullish, especially HDFC Life. If you can name me the stocks, मैं आपको ना वो सब stocks के ना I will tell you the. पहले हम लोग को सेक्टर का ऊपर बताइए. I think इंडेक्स का ऊपर that is Nifty Financial Service. Okay. Nifty Financial Service, na Fin Nifty. Yeah. Correct. Fin Nifty outperformance है sir at the moment. You can. It is moving. It's on the upward bias में consolidation हो रहा है इसमें, and bias is definitely on the positive side. Fin Nifty में sir. It's positive. It's trading at 26,654. My sense is that 26,000 should be a good support for this. And cluster है यहाँ पे of all the moving averages. If it is consolidating and trying to move up, that's what my sense is. And which are the companies under the Fin Nifty that looks good? आपने कुछ निकाले थे थोड़ा I देर think पहले. Bajaj Finance is one, right? I will just check up. Yeah. So these are the stocks of Fin Nifty. इसमें HDFC Bank, ICICI banks are looking good. Bajaj Finance is looking good. But the जो major outperform है, आपने finance nifty का बात किया, we will take the insurance sector separately. जो आपने बात किया तो इधर HDFC Bank is looking very good, very promising sir. क्योंकि आप देखोगे एक upward consolidation, it is trying to break out on the upside, and it probably ascending triangle type भी है सर इसमें. By the way, I would like to congratulate you. Pradyut ji, last session में आपने you were very bullish on Maruti, Mahindra and auto sectors. Oh yes. And we have really seen them outperforming, in last this week. So great, good job, Pradyut ji. Thank you so much, sir. Thanks. Yes, thank you so much for the appreciation. That's our job. इसमें ठीक है. But this at the moment, sir, I think HDFC Bank अगर कोई long term perspective से देखना चाहता है, so this stock should be outperforming from the financial nifty space and bank nifty space, sir. Okay. Why I'm saying this? Because ना इसमें वेटेज HDFC बैंक का अच्छा है, and ये एक upside में एक ascending triangle is trying to break out on the upside. HDFC बैंक, and एक कहीं ना कहीं इसमें एक आपको सेफ्टी भी आता है यहाँ पे, क्योंकि आगे मेजर ट्रिगर्स है, जैसे 27 अगस्त को ट्रम्प का है, एंड फेस्टिव सीजन इज अपॉन अस. तो उसके मद्देनजर रखते हुए माय सेंस इज दैट टू बी इट मेक्स मोर सेंस, इट विल बी अ प्रूडेंट स्ट्रेटेजी टू बी ऑन basically the major stocks like HDFC Bank and ICICI Bank. Perfect. Technically they are looking very good, and my sense अगर आप इसको 1 year perspective से देखोगे HDFC बैंक को, तो ये बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करेगा. Probably the targets would be at around 2300 levels on with a 1 year perspective on HDFC banks. Okay. Yeah. What is the next one? The next one would be ICICI Bank. ICICI Bank भी अगर आप देखो तो nice out performance है banking stocks में and financial nifty में sir. It is holding very well to the support, the trend line support levels, and upside consolidation है इसमें, and the good thing is that आपको एक थोड़ा सा नीचे levels में मिल रहा है. But again, this I'm talking with relative to outperformance. So my sense is that HDFC Bank and ICICI Bank should be a major outperformer from the financial nifty. Yeah, and अगर this were private banks also, अगर आप देखो तो I'm again positive on PSU banks more than on private banks. Private PSU banks में State Bank of India would be a very good bet, and Indian Bank. This is the chart of State Bank of India. देखो इसमें एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है सर. So nicely it is consolidating and trying to move up. My sense is that all time highs ये जाना चाहिए State Bank of India.
technically the landscape is quite bullish on State Bank of India. Last time also we had covered. My sense is that State Bank of India और PSU banks में अगर आपको देखना है तो Bank of Baroda and this is also looking good. Indian Bank. See, बहुत अच्छा consolidation हुआ है सर यहाँ पे ये levels पे. And probably one some good news, and this is going to spike towards 290 levels. It's trading at 245 Bank of Baroda. बहुत ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन हुआ है PSU बैंक स्पेस में. करेक्ट. अगर आपको सेफ्टी के हिसाब से जाना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वुड बी अ गुड स्टॉक, एंड देन माय सेंस इज दैट Bank of Baroda is a good stock. My sense is that 289 290 levels should come there, and the best, the beautiful charts जो है जो एट द मोमेंट है वो है इंडियन बैंक का सर, फ्रॉम द PSU बैंक्स. देखिए बहुत ये सब बैंक्स ना जो भी अभी हम लोग ने डिस्कस किया नीचे में कंसोलिडेट हो रहे थे, बट दिस इज मेकिंग हायर हाइस. तो एनी कभी भी ट्रम्प टैरिफ के कारण अगर कुछ 27 अगस्त को कुछ भी गलत न्यूज आता है एंड मार्केट्स आर पैनिकिंग, और अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करना है तो प्रॉब्ली PSU बैंक्स में इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, these stocks will make definitely sense. Lovely. Yeah, from the अच्छा, हम लोग का व्यूअर्स या प्रदीप जी. Yeah. एंड डेफिनेटली अगर आपको इस स्पेस में और देखना है तो HDFC AMC एक अच्छा है, हायर हाइज है. ठीक है. HDFC AMC इसका कॉम्पिटिटर एंड NAM है, निपन म्यूचुअल फंड, वो भी एक बहुत अच्छा. देखो दोनों का चार्ट्स देखो सर कितना ब्यूटीफुली, इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस बोथ आर मूविंग अप, एंड दोनों में एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप आ रहा है सर. So nicely they are inching towards their all-time highs. Can you term it कि एक ब्रेकआउट देने वाला है ये? हाँ ये दे रहा है ना सर, ये तो It's already giving a breakout, right? NAM निपन एसेट मैनेजमेंट तो दे रहा है. इट इज बहुत अच्छा, एंड दैट इज आल्सो मतलब आई थिंक 2 महीने का अपसाइड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, और प्लस असेंडिंग ट्रायंगल भी है सर, अच्छा असेंडिंग ट्रायंगल है. देखिए My sense is that 910 920 तो immediately आना चाहिए on any dips. कभी भी कोई पैनिक आए तो this NAM would be a good stock, NAM, and HDFC AMC also. These are outperformers. अभी now can we take up your HDFC Life and ICICI Prudential? Sure, please. So I think I'm clear on. I'm talking about the bullish stocks. जब भी कोई पैनिक आए तो we have to take. At the moment, my bias on markets on Nifty and Bank Nifty is neutral to positive है. Unlike last week, it was screaming buy. अभी neutral and positive है sir. On dips definitely, and I am basically making my stand neutral to positive primarily because of one reason only: August 27. That's the D-Day. वो बोलते हैं कयामत का दिन है वो सर. उस दिन अगर रेट्स अगर कम हुए हमारे उससे पहले तो नथिंग लाइक इट. अगर वो लेवल्स पे रहते तो वी हैव टू सी कैसे मार्केट्स रिएक्ट करता है सर. बिल्कुल. हम लोग का व्यूअर्स का भी कोई स्टॉक्स है, रेलटेल, टाटा मोटर्स, सिप्ला, हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, राम कुमार एंड जीवन एंड जसुराज. तो यस यू वांटेड टू शो सम कंपनीज, यू नो. या आई वांटेड टू शो, जो आप लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स का बात कर रहे थे, द टॉपिक जहां तक आ गए, तो HDFC लाइफ है ना, दैट इज शोइंग गुड मोमेंटम ऑन द अपसाइड सर. देखिए ये स्टॉक ना कितने साल का ब्रेकआउट दे रहा है अपसाइड में सर. ठीक है. ये बेसिकली कोविड के बाद थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, एंड नाउ आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बिहाइंड इट, इट लुक्स लाइक, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई. It's moving in an upward channel. Upward channel sir, very nicely said sir, and it's trying to move break out on the upside. Break out of this channel. So HDFC Life would be a very good stock, but slow moving stock है. But let's see, momentum में आएगा तो we will discuss on our next episodes. Maybe we will discuss on that. But the only thing is that ये stock अभी थोड़ा momentum में आना चाहिए. But having said that, any panic में आपको ले लेना चाहिए सर. So great. As you're saying that as we are approaching 27th of August, so अगर कुछ अच्छा होए तो अच्छा है. Even 25% additional tariff remains, so nothing much to worry. Buy those stocks, or you can,
consider those stocks, which are technically looks very powerful and sound. Sir, before proceeding, sir, what's your view कि कहाँ तक rate settle होगा, sir? No, this is my view is anybody's view at this point of time because lots of unpredictability is there. So again, राम कुमार जी का एक रेल टेल कॉर्पोरेशन है, उसको एक बार बताइए ना. वेरी गुड. आई थिंक लास्ट टाइम आपने डिफेंस स्टॉक्स के बारे में बात किया था कि डिफेंस हाउ आर डिफेंस स्टॉक्स लोडी. मेरे को लगता है डिफेंस स्टॉक से ना जो अच्छा जो स्टॉक्स दिखता है वो है ये रेलवे स्टॉक्स मेरे को जो ठीक लगता है सर. ठीक है. इट हैज टेकन ए सपोर्ट. अगर इनका व्यू अगर वेरी शॉर्ट टर्म है तो माय सेंस इज दैट 335 340 दिस लेवल्स वुड बी अ गुड सपोर्ट फॉर रेलटेल. दिस इज द डेली चार्ट ऑफ रेलटेल सर. ठीक है. So it is almost at the support level only. अगर he is an investor, राम कुमार जी is an investor, can he think about मतलब long term के लिए at this point? It's almost at the support line. It is taken as support at this level. तो आप बोल सकते हो 335 on a closing basis. This will act as a very good support for RailTel, sir. Okay. And अगर आपको फिर ये अगर 400 के ऊपर आता है तो फिर उसमें मोमेंटम आना चाहिए. But my sense is that this is at oversold levels. तो आपको ये you have to look into these stocks with a investment with a short term with a swing trade के हिसाब से आप देख सकते हो सर ये स्टॉक. नॉट ए पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है इधर आप देखोगे तो ये देखो प्राइसेस पॉजिटिव डाइवर्जेंस तब होता है सर जब ये प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं और ऑसिलेटर्स ऊपर जा रहे हैं. तो अगर आप देखोगे दिस हाई वाज एट अराउंड 355 एंड दिस हाई वाज एट अराउंड दिस लो. ठीक है. इट इज मेकिंग लोअर लो. प्राइस वाज मेकिंग लोअर लो एंड बट द ऑसिलेटर्स वर मेकिंग हायर हाई. तो एक आपको एक स्पाइक देखने को मिला. करेक्ट. करेक्ट. तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है. तो माय सेंस इज दैट here we have to look into the buy side, positive biases definitely, and 335 would be a good support for RailTel. टाटा मोटर्स कैसे लग रहा है जीवन? सर जैसे लास्ट वीक में मैंने बोला था जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे थे मारुति अच्छा लग रहा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा लग रहा था, टीवीएस मोटर्स था आपका. ऑटो स्टॉक्स में ना दो स्टॉक्स है मूव्ड अप 100% आउट परफॉर्मेंस था. करेक्ट. एंड ऑटो इंडेक्स this we will check up with निफ्टी ऑटो इंडेक्स. देखिए निफ्टी ऑटो इंडेक्स एक कंसोलिडेशन फेज से ऊपर गया, एक स्पाइक दिया इसने. करेक्ट. ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा. लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि इट इज ब्रेकिंग आउट और सभी लास्ट सेशन में इट वाज अबाउट टू ब्रेक आउट. या अबाउट टू ब्रेक आउट. सो वी वर एट अराउंड 20 बिलो 24,000 लेवल समवेयर. तो ये इंडेक्स हैज मूव्ड अप 5.5%. ठीक है. अभी हम लोग एक एक स्टॉक अगर देख लें तो इंडेक्स हैज मूव्ड अप 5.5%. तो स्टॉक्स अगर हम लोग मोमेंटम खेल रहे हैं तो प्रॉब्ली स्टॉक शुड बी आउट परफॉर्मर. अब मैं टाटा मोटर्स का स्टॉक लेता हूं सर. देखो अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है सर. इट हैज नॉट मूव्ड अप. तो लास्ट टाइम जो बात किया तो अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है. इट इज मूविंग. इट इज स्टिल ट्रेडिंग बिलो इट्स मूविंग एवरेजेस आप बोलो सर. Even it is moving below its 200-day moving average sir. इसका 200-day moving 700 705 710 तक आता है सर. So आपका कहने का मतलब ये है कि out of all the auto stocks, Tata Motors does not look to be very attractive at this point of time. जब सर ऑटो इंडेक्स चलेगा ठीक है सब स्टॉक सब चलेंगे. बट आपको देखना है कि where the big money we can make. जहां पे मेजर आउट परफॉर्मेंस कहां पे होगा वी हैव टू सी दैट. करेक्ट. तो मेजर आउट परफॉर्मेंस अशोक लेलैंड में है, टीवीएस मोटर में है, मारुति में है, एमएनएम में है सर, आइचर मोटर में भी है. मैं आपको ना वो चार स्टॉक्स दिखाऊंगा तो आपको एक समझेगा कि हाउ वी नीड टू एलोकेट आवर फंड्स एंड व्हिच स्टॉक्स टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट बेसिक. Again, let me clarify, these are not recommendations. These are all technical analysis by Pradyut ji and his view on the technical chart. So do not consider it as a direct recommendation to buy or sell. So Pradyut ji, if you can show the other stocks as well. Whatever we are discussing, महज sir एक educational purpose के लिए sir. Yes. Because you are very nicely explaining the technical pattern as well, along with whatever your view is. So look at these charts of Tata Motor. It is underperforming.
ऑल टाइम हाई सर अराउंड 1175 है। हम लोग गलती क्या करते हैं, रिटेल मीन्स हम लोग ये करते हैं कि जो नीचे में लेवल स्टॉक रहता है ना, वी बाय दो स्टॉक्स। करेक्ट। करेक्ट, वी नीड टू मूव विद द मार्केट ट्रेंड। जो अगर ऑटो स्टॉक्स मूव हो रहा है, एक ब्रेकआउट आ रहा है, तो हम वी हैव टू मूव अप विद द ट्रेंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर। अगर जैसे अगर निफ्टी मूव हो रहा है तो अभी नेक्स्ट क्या स्टॉक्स मूव हो सकता है निफ्टी में, वी हैव टू लुक इनटू दो स्टॉक्स। बट हम लोग यूजली एक मेजर गलती करते हैं कि ना, जो अंडर परफॉर्म कर रहा है वी गेट इनटू दो स्टॉक्स। टाटा मोटर में ना दिखता है सर, सामने सामने अगर आप देखोगे इसमें, तो जेएलआर का सेल्स वीक आया था लास्ट मंथ में। यूएस टैरिफ का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पे ये कंपनी को कैसा होगा। थोड़े से लोन भी लिए हैं, अभी एक नया कंपनी भी इन्होंने लिया है, तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। चाइना में कैसे सेल्स होगा, यूएस में हाउ दे विल कॉम्पीट, बेसिकली द जेएलआर सेल्स, फिर कंपटीशन है ये इंडस्ट्री में। अगर इसके बदले अगर मैं आपको ना हुंडई मोटर्स दिखाऊंगा ना सर, हुंडई मोटर्स आप देख के ना ये हो जाओगे सर। देखो इसका आईपीओ कब आया था, आईपीओ आया था अराउंड 1800 लेवल्स पे, and it is trading at 2450 levels. It had spiked up to 2600. ये भी एक ना अपसाइड में है सर इन Hyundai Motors. You have to look into this stock also, Hyundai Motors. So anytime if you see this stock at around 2250 because of any negative catalyst, I think should look into stock. अभी मैं ना जो मेजर जो स्टॉक्स जो ठीक लग रहे हैं ये सेक्टर में, मैं आपको बताता हूँ। टीवीएस मोटर देखो सर, टीवीएस मोटर लॉन्ग टर्म बुल रन में है सर, और इनका सेल्स वन ऑफ द बेस्ट आता है। कोई भी मंथली सेल्स देख लो और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन होल्ड करके ऊपर जा रहा है सर। इट कांट बी बेटर देन दिस। एक ब्यूटीफुल टेक्स्ट बुक पैटर्न है इसमें। कभी भी ये जो लो है ना सर, ये लो है 2020 का जो लो है कोविड के बाद का, उसके बाद कभी भी हाई इसका जो लो बना है ना वो प्रीवियस इससे ऊपर ही है। ये देखो यहाँ पे लो है, फिर ऊपर आए, फिर ऊपर आए, कभी भी इसने चांस ही नहीं दिया है। Massive wealth can be made Very if you are nice. looking into these type of stocks which are making higher high, higher low patterns. So this is a beautiful example of higher high, higher low pattern. तो कभी भी अगर आपको इस स्टॉक में टीवीएस मोटर में कभी एक पैनिक मिला, तो नीड टू लुक इनटू दिस स्टॉक ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। देन मैं आपको लास्ट टाइम जो मारुति का बात कर रहा था, मैं मारुति देखो जस्ट स्टार्टेड से, जस्ट स्टार्टेड, और अभी न्यूज क्या आया है, आफ्टर दैट मोदी जी के जो ऐलान के बाद न्यूज आया जीएसटी में स्मॉल कार सेगमेंट्स में आएंगे राहत, इट मे प्रॉब्ली कम डाउन। सो एक इट इज गिविंग ए मैसिव ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड सर। ये चीज अपने को समझना है। हम लोग शायद हो सकता है कि ना प्राइस इसका 14,000 पे, तो हम लोग इसको ना इग्नोर कर देते हैं, बट माई सेंस दैट सेफ मनी इज टू बी मेड हियर। और इसका तो ये मंथली चार्ट है, दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ मारुति। इधर भी हायर हाई है सर, बट नॉट लाइक टीवीएस मोटर, बट स्टिल यहाँ पे है। अगर आप देखोगे टीवीएस मोटर और मारुति को, तो टीवीएस मोटर हैज आउट परफॉर्म। अब इसका ईयरली चार्ट जो मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था, ये ना सर 2017 के हाई के ऊपर आया है सर। अभी पहली बार ऊपर आया है। ये चीज समझना है। एंड ये देखो इसमें अपसाइड ब्रेकआउट है सर। ये आपको ना मिनिमम एक अच्छे लेवल्स तक लेके जाएगा, 17-18,000 के आसपास, अगर आप 2 इयर्स के पर्सपेक्टिव से रखते हो तो सर। और सेफ बेट है, कभी भी नीचे आए तो मारुति लेना सर। On the yearly chart pattern, it has given a massive breakout, मारुति। फिर हम लोग दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, M&M। एनीवे दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड। तो ये M&M भी एक अपसाइड। जो मारुति का जो चार्ट है ना, देखो यहाँ पे ऐसा था, ये जो M&M ये लेवल्स पे था, 900 के लेवल्स पे था। उसके बाद देखो कितना अपसाइड आया, ये थाउजेंड्स के लेवल के बाद अभी 3385, 3 टाइम्स 3 बैगर हो गया सर। तो व्हाई नॉट मारुति सर, व्हाई नॉट मारुति? एब्सोल्युटली। सो प्रदीप जी, एक क्वेश्चन है अगेन जीवन जी से, सिप्ला का ऊपर फार्मा सेक्टर्स, बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन फार्मा सेक्टर्स, सर वेरी right गुड। from tariff to, हाँ सर, and you are talking about defensive sectors as well.
Yeah, So yeah. what do you think about pharma as a sector and Cipla in particular? Sir, I'm out of in the pharma space. I am quite bullish on Cipla. Quite bullish on Cipla. Irrespective of Trump का जो tariff के बाद ना, the stock has maintained its level and probably it's inching up now. It is technically, पहले technically बात कर लेंगे. देखिए एक सपोर्ट ना बहुत अच्छा होल्ड किया है एंड एक कंसोलिडेशन ना इट इज मूविंग अबव ए कंसोलिडेशन लेवल. ठीक है, इट्स एमिंग टू मूव अबव दिस लेवल्स. हम लोग ने सिप्ला अपने वीकली चार्ट्स में, वीकली रिपोर्ट्स में भी ये किया था सर. पेटीएम मनी के जो वीकली एपिसोड्स में भी सिप्ला रिकमेंड किया था हम लोगों ने विद टारगेट्स ऑफ 1800 लेवल्स. आई थिंक 2 वीक पहले ही किया था. ठीक है, तो ये है सिप्ला एक हायर हाई बना रहा है, एक अपसाइड, एक कंसोलिडेशन में है बट अपसाइड में है. इट इज ट्राइंग टू मूव अबव एंड द सेंस इज दैट ये जो ट्रेंड लाइन है अपसाइड में, जो हर्डल्स है इसका, इट इज ऑन द वे टू मूव अप. माय सेंस इज दैट ये जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी सिप्ला का, दिस इज अराउंड 1702. ये तो इमीडिएटली अचीव हो जाना चाहिए and probably the aggressive targets would be at around 1800 1850 levels. Those levels with and I think एक 12 to 15 months perspective से आप 1850 तक आप देख सकते हो सिप्ला में. The technicals are quite bullish. आप देखो इतना पेसिमिज्म के बाद भी ना ये स्टॉक ना ये प्रीवियस लो के नीचे नहीं आया. इट इज एंड इट इज ट्राइंग टू, इट्स कंसोलिडेटिंग नाइसली एंड ट्राइंग टू मूव अप. अगर आप इसके बदले अगर आप सन फार्मा लेते हो जो इंडेक्स हैवी वेट है, देखो not moving as nicely as सिप्ला. ये सन फार्मा का चार्ट है, अभी ये सिप्ला का चार्ट है. तो सिप्ला इज ट्राइंग टू आउट परफॉर्म सर. अगर आप ये देखो तो ये लेवल से एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है सर. ये माय सेंस इज दैट 1850 दिस लेवल should hold on to सिप्ला. Long story short sir. So I'm sure Jivanji, you are happy, you are satisfied with the explanation given by Pradyut ji. This I'm तो talking. अदर व्यूअर्स के लिए भी कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी स्टॉक्स को ऊपर, प्लीज फील फ्री, गो अहेड एंड टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. So Cipla is outperforming from the pharma space and थैंक यू, वेरी इंसाइटफुल. एक और चीज है, ओनली इधर जो है वो ट्रम्प टैरिफ है. अगर फार्मा कंपनीज में कुछ लगता है तो पैनिक हो सकता है, बट वो पैनिक में मैं बोलूं फंडामेंटल ऑफ द कंपनीज वेरी स्ट्रांग. रिजल्ट्स भी Q1 रिजल्ट्स वर फिनोमिनली वेरी गुड सर. तो कभी भी अगर वो उसके कारण अगर मार्केट्स नीचे गिरता है, सिप्ला अगर करेक्ट होता है या एक शार्प पैनिक मिलता है, तो उस दिन पहले जाके खरीदना है, ऐसा मेरा सेंस है सर. ओके सर, आपके लिए और एक आए हैं मिस्टर राम कुमार जी से, रिलायंस पावर. इवन बोथ रिलायंस एंड रिलायंस पावर, बिकॉज रिलायंस ऑल्सो सीम्स टू बी हैविंग ए गुड प्रोस्पेक्ट. सो रिलायंस एंड रिलायंस पावर, पहले रिलायंस पावर बता दीजिए. रिलायंस पावर ना, आर पावर है ना सर? आर पावर. आर पावर आ नहीं रहा है तो. No, I'm not able to figure out this. But क्यों नहीं आ रहे? I think ये इसमें है क्या, T2T सेगमेंट ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आना तो चाहिए आर पावर. एक एक बार चेक कीजिए. आर पावर unable to रिलायंस पावर, नहीं रिलायंस पावरफुल नहीं आ रहा है सर. समथिंग आई थिंक आई एम नॉट एबल टू मेक आउट. क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, आर पावर आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट सर. इसका तो है बट अनएबल टू मेक आउट. ओहो, मिस्टर राम कुमार जी, apologies, somehow let me check on my part. ठीक है. आप another stock है संजय. We will cover it definitely next time sir. आर पावर. हाँ, ठीक है ना, डेफिनेटली आई हैव नोटेड इट डाउन. वी विल कवर इट. दिख नहीं रहा मेरे को कैसा आएगा सर. क्यों नहीं आ रहा है? ये तो आना चाहिए. not perform. Not sure, sir. I have checked ऐसी the कोई, हाँ, It's trading at ये अच्छा, ये तो रिलायंस, ये कौन सा है? हाँ, ये आ गया ना आर पावर. ये है क्या 47 है? या It's trading at 47. लेट मी, यस, Yeah, 47.
करेक्ट ना? हम्म ये चार्ट है सर. इट हैज शॉर्ट टर्म में इट हैज टेकन सपोर्ट वेरी नाइसली ऑन द ट्रेंड लाइन, एंड माय सेंस इज दैट इसमें बायस पॉजिटिव ही होना चाहिए सर आपका. Bias is positive. Again, it's coming back and taking support on the trend line, upward trend line. तो आई थिंक वो न्यूज था एडीजे ग्रुप के ऊपर अगेंस्ट में न्यूज था, आई थिंक उसके कारण ये अपसाइड से 75 से ये 40 तक आया है. तो माय सेंस इज दैट जो सपोर्ट्स है, जो प्रीवियस लो जो उसका सपोर्ट है 32 के आसपास, दैट शुड बी अ वेरी गुड सपोर्ट, द मीडियम टर्म सपोर्ट ऑन दिस स्टॉक. तो वो लेवल ध्यान में रखते हुए आप इसमें लॉन्ग पोजिशंस कर सकते हो. दैट्स व्हाट माय सेंस इज. Currently on the upward trend line में है. अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, टेक्निकली अपवर्ड ट्रेंड लाइन है. इसको देखो नाइसली, देखो टेक्निकल कितना ब्यूटीफुल है सर. इट एवरीथिंग इज इन द प्राइस अगर बोलते हैं ना, वैसा है. तो ये ऊपर में इट टुक द रेजिस्टेंस एट दोस लेवल्स, उधर कुछ गलत न्यूज आया, फिर ये सपोर्ट एग्जैक्टली वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे इट हैज टेकन एंड ट्राइंग टू इंच अप बेसिकली. But having said that, supports would be at around 32 जो previous low है, March 2025 का जो low है, that would be a good support for the stock, and I would treat it as a risky bet है basically. थोड़ा रिस्की है. थोड़ा रिस्की है, लाइक दैट चार्ट से ऐसा दिखता है, थोड़ा रिस्की तो है क्योंकि इतना 75 से 45 आया, तो दैट वुड आई वुड डेफिनेटली ट्रीट इट एज ए रिस्की थिंग्स. Okay. I hope Chandar you got your answer. अच्छा sir, very quickly, K Fintech. Which one sir? K Fintech. K Fintech. हाँ, K Fintech. Looking at it sir, just It is also in a very strong uptrend, secular kind of an uptrend for a long time. but somewhere it is losing its momentum. Technically, I'm sensing that. It's making a lower high. हाँ, नहीं लोअर है नहीं ये. इट हैज एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट, इट हैज ब्रोकन. एक कंसोलिडेशन था ये, देखो एक पैनिक सेल ऑफ हुआ था यहाँ पे. दिस वाज वे बैक इन दिसंबर 2024 में, दिसंबर जनवरी के आसपास एक अच्छा सा पैनिक सेल ऑफ है. दिस इज अ पैनिक सेल ऑफ यहाँ पे. ठीक है, आफ्टर ए हाई ऑफ 1600 से ये गिरा था 800 तक. एक पैनिक सेल ऑफ है, और वो पैनिक सेल ऑफ के बाद थोड़ा सा बार्गेन हंटर्स आए हैं, एंड बार्गेन हंटिंग हुआ, एंड इट हैज टेकन द प्राइस टू, इट हैड टेकन द प्राइस टू 1400, बट इट डिड नॉट मूव अबाउट दिस लेवल 1600 लेवल्स. एंड कहीं ना कहीं एक डबल टॉप, एक शॉर्ट टर्म डबल टॉप टाइप एक यहाँ पे एक हर्डल्स है इसको सर. दिस वुड बी एट अराउंड 1350 1400 लेवल्स में है. अभी मोमेंटम लूज कर रहा है ऐसा दिख रहा है. Momentum is fading on the upside, ऐसा दिख रहा है. So if he's looking for, buying this stock, can hold for time being, it doesn't look that attractive, at this point of time. Momentum, it's somewhere lost the momentum basically. Lost the momentum. And especially after this spike, ये देखना पड़ेगा, इसको मेरे को जरा समझना पड़ेगा. I will come back to you on this stock detail में, why this fall and everything had happened, and then we can come to a conclusion. But at this point in time, it clearly suggests the stock is not in momentum. ऐसा है. अभी अगर आप मोमेंटम का बात करोगे ना सर, तो कल एफएमसीजी स्टॉक्स डिड वेल. अच्छा, वरुण कल yesterday I think Varun Beverages also did pretty well today yesterday. कल वरुण बेवरेजेस कल 2% अप था. ठीक है, ब्रिटानिया वाज अप, हिंदुस्तान यूनिलीवर वाज अप 1%. करेक्ट. हाँ, आई पिक अप एफएमसीजी स्टॉक्स नाउ. उधर मोमेंटम है. अभी ये के फिनटेक में ना मोमेंटम समवेयर इट हैज लॉस्ट. जो हम लोग लास्ट टाइम, आई थिंक इट्स इन सॉफ्टवेयर राइट, के फिनटेक. Yeah, it's a financial technology. I think fintech space में इतना मुझे भी मालूम नहीं है. देखना, आई विल कम बैक टू यू ऑन फिनटेक नेक्स्ट टाइम, बट एट द मोमेंट इट लुक्स लाइक इट लूजिंग मोमेंटम. अभी आप जो बोल रहे थे वरुण बेवरेजेस का सर, जो एफएमसीजी स्टॉक्स है ना, दो स्टॉक्स कल उसमें एक अच्छा बाइंग देखने को मिला है, और वो वरुण बेवरेजेस सर एक लोअर लेवल्स में ना कंसोलिडेटेड होकर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है सर. ठीक है, और अपसाइड का ना ये ट्रेंड लाइन ना इसने ब्रेक कर दिया डाउन साइड में सर.
ठीक है, मतलब इसको जो इसने नेगेट किया हुआ है, जो फॉलिंग इसका जो चल रहा था ना कंसोलिडेशन, तो इट इज ट्राइंग टू मूव अप, दैट्स व्हाट माय It's a kind of a reversal kind of a हाँ, एक play. रिवर्सल आप इसको मान सकते हो एफएमसीजी स्पेस में सर। तो लोअर लेवल से कंसोलिडेट इसका जो मेजर जो हर्डल है अराउंड 530 535 लेवल्स पे है। एनी टाइम इफ यू आर मूविंग अबाउट दिस, तो देन इसमें एक मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम my sense is that this level 475 480 levels would be a good support level for this stock, and look safe buy तो दिखता है ऐसा है, बिकॉज इसका मोमेंटम अपसाइड में बिल्डअप हो रहा है, and Okay, confirmation would come definitely above 450 levels. fantastic. बट इस स्पेस में जो सबसे अच्छा जो स्टॉक लगता है, जो सबसे अच्छा स्टॉक जो मेरे को आज डिस्कस भी करना था, मेरे को याद आया, वो है मैरिको सर। मैरिको का ना मैं मंथली चार्ट दिखा रहा हूं सर आप। सो ब्यूटिफुली इसमें ना सेफ बेट है सर, इसमें आपको ना सोचने का जरूरत ही नहीं है। ये देखो, ये दिस इज मंथली चार्ट ऑफ मैरिको एंड मूविंग अप सर। एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप कुछ इसने अपसाइड में ब्रेक किया था एंड मूविंग अप मैरिको। Lovely. कल ये स्टॉक में 5% मूव हुआ था, आज कंसोलिडेशन है क्योंकि वो बहुत एक लेवल से निकल रहा ऊपर। ये स्टॉक को ना अगर किसी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर लेना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना, अगर ये स्टॉक ना 1 ईयर 18 मंथ्स पर्सपेक्टिव, माय सेंस इज दैट फोर फिगर के तरफ जा। मतलब लेने का नहीं, it looks good. On dips, sir, definitely you can. If you want to build up your portfolio, why not Marico, sir? Defensive. No, again, मैं यहाँ पे ये क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि दिस इज नॉट रिकमेंडेशन, ओके? Sir, दिस this इज is whatever we are just discussing a pattern कि यहाँ पे ascending triangle pattern है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा लग रहा है। एंड And अगर आप इसको अगर इससे भी जोड़ो, एफएम मींस अगर जीएसटी अगर रिफॉर्म्स का बात कर रहे हैं, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होता है, लोगों के पास ये आता है, तो दिस all the positive triggers are there for this particular stock. ट्रेंड अच्छा है। रिजल्ट्स Q1 रिजल्ट्स भी अच्छे थे, अभी का जो आया है ग्रोथ है, अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो माय सेंस इज दैट अगर आपका होराइजन अगर 15 मंथ्स ऐसा है, तो माय सेंस इज दैट ये अराउंड 4 फिगर लेवल्स जाने का तैयारी कर सकता है सर। ब्रेकआउट है अपसाइड में। Wow. space है। अच्छा प्रद्युत जी, वेरी क्विकली हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। वी आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड आवर टाइम। कल्याण ज्वेलर्स और गोल्ड में ईटीएफ करने ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गोल्ड इज अगेन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पोर्टफोलियो बैलेंसिंग एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कल्याण ज्वेलर्स एंड कर सकते हैं। चंद्र जी ने पूछे हैं कि पेटीएम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए देखिए, यू कैन गिव ए एनालिसिस, अगेन इट्स आवर ओन पेरेंट कंपनी, बट हम लोग एक प्योरली टेक्निकल व्यू आपको देते हैं स्टॉक के ऊपर। पेटीएम का 197 कम्युनिकेशन, ओके? सो लुक्स गुड। और वी विल ये कौन सा है कल्याण के, ये कौन सा स्टॉक है? इज इट कल्याण ज्वेलर्स? ये तो निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट। अच्छा, एक बार कल्याण ज्वेलर्स एंड फटक से पेटीएम के ऊपर एक आपका एनालिसिस दे दीजिएगा। कल्याण ज्वेलर्स एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है सर एट द मोमेंट स्टिल, ठीक है, ऐसा कुछ कहीं पे दिख नहीं रहा है कल्याण ज्वेलर्स में। बट अगर आपको ये स्पेस में अगर करना है और आपको ये जीएसटी रिफॉर्म्स का प्ले खेलना है, तो अंडर परफॉर्मर है, क्लियरली अंडर परफॉर्मर है सर। क्लियरली अंडर परफॉर्म हो रहा है। इसका रिजल्ट अच्छा था, जहां तक मेरा सेंस है रिजल्ट अच्छा था, बट उसके बाद इसमें थोड़ा सा ये आया, स्पाइक डाउन आया। तो वी हैव टू एड्रेस दिस, कैसा है ये, व्हाई इट हैज फॉर्म। बट माय सेंस इज दैट ओनली अबाउट 620 लेवल्स के ऊपर ही ना इसको ना देखना चाहिए फॉर मोमेंटम बाइंग सर, ओनली अबाउट 620, एंड इट इज अंडर परफॉर्मर। बट ये स्पेस में जस्ट आई विल आल्सो फटाफट एक बोल देता हूँ, टाइटन देखिए सर, टाइटन ना एक लेवल्स, टाइटन इज लुकिंग गुड। अगर ये स्पेस में अगर आपको करना है तो वेरी गुड, टाइटन वुड बी अ गुड स्टॉक टू लुक इनटू। वेरी गुड। एक या ऑल टाइम हाई के पास जाते हुए टाइटन है सर। हाँ, तो लेट अस बी इन ए बेटर स्पेस जहां पे विजिबिलिटी भी है, और अगर जीएसटी का कुछ होता है, अच्छा कुछ रिजल्ट्स आता है, तो डेफिनेटली माय सेंस इज दैट वी विल मूव अप ओनली। वेरी क्विकली पेटीएम के ऊपर। ओह लवली सर, ये आपको मेरे को 1 ईयर। No, again, this is a clarification that this is a pure technical analysis. सर It's इट्स not a recommendation.
ये purely educational purpose है. I will also repeat. हाँ मेजर जो इसका रेजिस्टेंस था सर, जो मेजर रेजिस्टेंस जो इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था वो ये लेवल्स था सर. पेटीएम 1000 लेवल्स, 1050 लेवल्स था ये. इट हैज मूव्ड अबाउट दोस लेवल्स सर. और अगर आप नीचे से देखोगे तो सेंस इज दैट it is trying to inch up towards. I think my sense is that 1500 level should come. The way इसमें higher bottom बन रहा है sir. Higher bottom बन रहा है. But definitely on any dips sir. New age. wonderful. New age. I think Pradyut ji, lovely talking to you. You have given lots of insight. We have discussed so many stocks, and I would like to thank all our viewers also, participants. They have given all the comments and they participated in the discussion. I'm sure, Pradyut ji, आपने हम लोग को how to analyze a stock technically and at the same time एक बहुत बढ़िया insightful session हम अपने provide किए हैं. So thank you so much. So just Thank you, all the participants. Please feel free. Go ahead. Motivate us to do this kind of sessions more in future. Thank you so much, Pradyut ji. Thank you sir. It's my pleasure. Thank you. Thank you. Looking for all the best everyone sir. Yeah, thank you. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.